सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू. मे लॉर्ड गणेशा ब्लेस ऑल एंड ये कोरोना जल्दी से चली जाए. थैंक यू. My heart goes out for the aspirant students who are unable to seek right counseling and often land up making wrong career decisions or choices. So it is never too late to seek the right guidance from the experts or the counselors who are available for you. So kids and students and parents, this session is for you. And I introduce you to Drina D'Souza, who will be taking us, through the journey, how a student can decide their careers and right path. This is Megha B. Pitwa, a spiritual advisor, life coach, and a career counselor. So, Drina, can we have you? Hi, Megha. Hi, welcome to our show. सुनिए कहिए कहिए सुनिए. तो इसमें क्या है, हम उन लोगों को बुलाना चाहते हैं जो एक्चुअली उनके पास इतना सारा बोलने को होता है, पर मतलब अपने काम में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि कह नहीं पाते. बट आज आप हमारे साथ में रहिए और हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़ेंगे, पेरेंट भी जुड़ेंगे. उनको बहुत कुछ जानना है और जितने हमारे ऑडियंस है उनके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी जो आज आप शेयर करेंगे उनके लिए. Yeah, thank you. Acha, firstly, I want to start with all the audience that Megha started really well. And the thought itself is so pure that yes, today there are so many students that come up with challenges. In fact, we'll not say today, since times there have been challenges coming up with each and every student. Well, like we were also students, and when we cleared 10th, we also have faced the same challenge. So this is like a traditional culture which has been going on. So today this is just a small step. I think I have created a small presentation, Megha, which I would like to present to all the audience. So, if I can take them through the presentation and let them know that if this guidance was brought to us when we were in our 10th, it would have been a great help. In fact, agar aap personally bolo to I will also share my journey, my career journey, while I am discussing with all of you or giving you a small insight. But at the same time, somebody telling us कि यार देखो तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस है, इस ऑप्शन को इस तरीके से कर लो. चलो ये नहीं होता ना, तो तुमको पहुंचना कहाँ है? ठीक है, बस से नहीं पहुंच पाओगी, छोड़ो मत पहुंचो. आजकल तो ऑटो भी अवेलेबल है. पहले हम क्या बोलते थे, बस ही रीचेबल है या फिर ट्रेन ही रीचेबल है, ऑटो ही रीचेबल है. आज की तारीख में ना ऑटो सही है ना सेफ है. मतलब करंट सिनेरियो, बस तो आप सोचो भी ना, और ट्रेन तो बंदी पड़ी हुई है. तो हमारी मदद कौन कर रहा है? अब आ गया ओला और उबर, आप ऑनलाइन कर लो. तो ये करंट सिनेरियो अगर आप देखते हो तो इट हैज सच अ लॉट ऑफ लर्निंग. So ideally, I feel somewhere at a very, very, very 0.5%, I disagree to your last statement that was Corona jaldi chala jaye. That is only because Corona ke chalte today we have learned so many things digitally, or else we were just, there was a lot of time that we were spending in traveling or going and reaching out and meeting people and talking so many things, जहाँ पे कि बहुत सारे diversions आ जाते हैं. लेकिन आज जब हम ऑनलाइन कनेक्टेड है, वी ऑल हैव लर्नड हाउ टू सेव टाइम आइडियली. सो मच ऑफ लर्निंग दैट कोरोना हैज गिवन अस एज एंड टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. इनफैक्ट जहां पे पहले आईटी सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा करता था, द लाइव एग्जांपल टुडे, you have so many organizations which have started junior codings. So students right from first standard have started learning, digital. So that's an interesting and a very quick growth actually. अगर एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो, बिकॉज आई एम एट अ मैनेजरियल लेवल, तो मुझे पता है हम कितना हेल्प हो रहा है इससे. सो लेट मी, I can actually keep going on. So let me go to the presentation so I can help you all. Definitely. We are eager to see that. Here it is. So this is a small initiative where I am trying to brief in that how the big question for today, that is what is the careers that we can think about after 10th.
So ideally, before I start itself, my first term that I have used is careers. करियर के बारे में हम सोचते ही कब हैं? When we were kids, हमने करियर के बारे में सोचा सिर्फ और सिर्फ तब जब 12th हो चुका था और ऐसा था कि ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, कौन से स्ट्रीम में कम सब्जेक्ट होंगी, पढ़ाई आसानी से हो जाएगी, so we'll take that. That was our choice, right? But today if we have not thought कि हमने आगे जाके किस टाइप का करियर करना है, किस टाइप की कंपनी में ज्वाइन करना है, किस टाइप का पोजीशन लेना है, अगर अभी से हमने सोचना भी शुरू नहीं किया है, तो to the speed at which suddenly the nation is moving with the current pandemic situation and the changes that have come up, you will be left behind. You know, this is the truth of life and we have to accept it. And Megha has given me this opportunity to bring it in front of you and also the host who have arranged the entire session for us. So this is a beautiful thing and a beautiful opportunity which I would like to take of letting you know that when we talk after 10th, we are limiting our thinkings to just art, science, commerce. और है ना एक ट्रेडिशनल, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि 10th हो गया तो 3 ही तो स्ट्रीम है, देखो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, यहाँ पे 3 ही स्ट्रीम है, तीनों में से कोई एक चुन लो, कोई भी एक आप उठा लो और चलो करो. अब सवाल आ जाता है कौन सा उठाएं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है. सो व्हाट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, which one and why is, and third question which is eventually very very important. Now this has been again, the word common is so important over here कि आपने 50% से कम लाए तो आंख बंद कर लो, कुछ सोचो ही नहीं, आर्ट्स में चले जाओ. टेक अ एनालिसिस फ्रॉम एनीवेयर, 50% और as of now also there will be 60% of people who will say 50 से नीचे आ गया तो जाओ भैया आर्ट कर लो. सही बात है. हाँ, 60 के ऊपर आए हो तो अच्छा थोड़े बहुत चांसेस हैं, चलो सोच लेते हैं कि साइंस में शायद कहीं मिल जाए. और अगर 70-80 के ऊपर है तो आंख बंद कर लो, या 80 है ब्रिलियंट बच्चा है तुम साइंस ही करो. ये हम सारे पेरेंट्स आज तक के भी, आफ्टर बीइंग एजुकेटेड आल्सो, वी एज पेरेंट्स, आई एम आल्सो अ मदर ऑफ 2 किड्स, सो हम आज तक के ये कल्चर कैरी करते आए हैं. क्योंकि देखो सही बात है, हमने जो घर पे सीखा है वही हम कर रहे हैं, जो हमने बचपन से रिलीजन सीखा है हम उसी को फॉलो करते हैं. ये सारी ट्रेडिशनल कैरी फॉरवर्ड्स है, इनके अपने अपने इंपॉर्टेंस है, हमने कैरी करना चाहिए. बट एजुकेशन इज समथिंग दैट विल लीड यू टू योर फ्यूचर. तो आपको अभी डिसाइड करना है कि आगे जाके आपको क्या करना है. एंड दिस इज व्हाई आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन वेयर एटलीस्ट पॉइंट वाइज हम आपको बता सकें कि यू नो आपने क्या करना चाहिए. तो मुझे ऐसे लगता है कि जब हमने ये कॉमन स्ट्रीम्स ही हैं और सिर्फ 3 ही स्ट्रीम है डिसाइड करने के लिए, तो इन 3 स्ट्रीम्स को हमने 3 और चीजें अटैच करनी है. पहली चीज जिसपे आपको ध्यान देना है, दैट इज योर इंटरेस्ट. So people who are viewing us, people who are listening to our communication, where we are there or going live also, so you have to understand कि पहले आप लिख लो कहीं पे कि आपके इंटरेस्ट क्या है. It can be 10 interest, 15 interest as on date. And you can take this in writing from me. In fact, Megha will agree to this. You can take it in writing from me that after your 11th standard, this interest that you have written today will change. 100%. You would have come back saying that अरे यार तब तो मैंने बोला था मैम, मैं समझ गया, अब मैंने आर्ट्स चुन लिया, उसके बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि आर्ट्स में भी थोड़ा दिक्कत है. तो आई विल अटेंड टू दैट इन माई फर्दर स्लाइड्स, दैट आर्ट्स में आपको कहाँ दिक्कत आएगी और क्यों दिक्कत आएगी. Although I have limited time or else I can continue talking, but we will follow the pattern. Second is, जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट किस में होगा हमारा, हम अपने इंटरेस्ट को कहाँ कहाँ के थॉट प्रोसेस दे, तो हमने सिलेक्ट करना है फील्ड, कौन से फील्ड पे. तो फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड सेकंड इज फील्ड. किस फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हो. वो फील्ड वो होता है जहाँ पे आप अपने आप को जॉब करते हुए देख रहे हो. वो फील्ड होता है जहाँ पे कल मम्मी रहे ना रहे, पापा रहे ना रहे, आप जरूर रहोगे. और वही फील्ड है जहाँ से आपकी इनकम आएगी. You would be probably holding what you want to become. Do you want to run a company and be a CEO of a company? Do you want to become a doctor? Do you want to get into social service? Do you want to give back to the
to the society. So there are lot many people who today are also developing this interest that they want to give back to the society. This is a new area which is developing. Correct. Then there is also another, so like what Megha, Dinesh ji, Ramakant, we all are doing is we are giving back to the society. We have learned so much, and our learnings is what would help you and probably make your future better and smarter. I don't mean to say that we are not doing a good future. We are doing a future of our choice. And I will also come to that why and how soon. Right? So, Gina, tell me one thing. I have been counseling few of the kids or the parents. They are facing वही जो आपने बोला आर्ट्स कॉमन साइंस, तो वो जो परसेंटेज क्राइटेरिया हो गया, प्लस देयर इज अ इंटरेस्ट विच वन हैज टू अंडरस्टैंड कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है. तो वो जो एनालाइज करने के जो टूल्स होते हैं जिससे पेरेंट्स का गाइडेंस बेटर हो सकता है, बच्चा सही पाथ ले सकता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दो चीजें. एक तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज इसमें होगा नॉलेज. एक है कि बच्चा तो 10th में ही है, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट क्लेम द बच्चा हैज बेटर नॉलेज. करेक्ट. राइट. सेकंड, पेरेंट है जो उस बच्चे को गाइड कर रहे हैं. हो गए रिलेटिव्स, जैसे कि यू हैव योर इमीडिएट ब्रदर्स, यू हैव योर इमीडिएट सिस्टर्स, यू आर सीइंग पीपल ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो फर्स्ट थिंग इज who is that person who is inspiring your child, right? Who is that person जो आपकी फैमिली के अंदर है और बच्चा उसकी मेंटरिंग ले रहा है. अगर आप उस बंदे को जानते हो तो एटलीस्ट इन अस वी से वी हैव गॉड पेरेंट्स, सो वी आइडियली कनेक्ट द चाइल्ड टू द गॉड पेरेंट, जो पेरेंट के अलावा किसी के सामने खुले और अपना इंटरेस्ट बताए और वो बंदा एनालाइज कर पाए, उससे मदद कर पाए कि भैया तुमने किस टाइप का करियर लेना चाहिए. एक ये तरीका हो गया. दूसरा तरीका है कि यू गेट इनटू एन प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग. Professional understanding is where we have different tools available today. ठीक है, जो not everybody wants to use it, but if you use it, you need to understand it cannot be used in the 9th standard or the 10th standard. This is my personal recommendation. Okay. Because I am also, like Megha knows, I am also a certified counselor, but we never recommend anybody कि अभी आपका 10th complete हो गया ना. बहुत सारे पेरेंट्स हैं, I'm telling you, there are more than 100 के ऊपर इंक्वायरीज जो आती है, जो बोलते हैं कि भाई बच्चे का ना 2 months में 10th का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद हमको टेस्ट कराना. क्या मतलब है टेस्ट करा के? एग्जैक्टली. आइडियली आपके बच्चे का आपने टेस्ट कराना चाहिए फ्रॉम द टाइम ही स्टार्ट्स डेवलपिंग अ इंटरेस्ट. सो द चाइल्ड में डेवलप इंटरेस्ट एट द एज ऑफ 5, एट द एज ऑफ 6. जैसे हम बोलते हैं हमारा ब्रेन डेवलपमेंट राइटली होता है एक बच्चे का एट द एज ऑफ 5. So right from the age of 5 up to the age of 10, you keep analyzing your child's interest. That is why we have, so why is not everyone a Shah Rukh Khan? Why not everyone is an Abdul Kalam? Everybody could be there. और हम बोलते ना कि आइंस्टाइन ने भी 0.5% ही अपने एनालिटिकल स्किल्स यूज किए थे, तब वो वहां पहुंचे थे. Right? So this is like how we want to take it and we want to do it. So that is where we need to check, we need to keep an eye on. Now, while we are talking about these areas of how these entrances can be given, and there are different types of tests, I guess psychological test होते हैं, बहुत सारे different types of test होते हैं. आप वो टेस्ट दीजिए, उस रिपोर्ट को आपको मैप करना है. और आपके जो काउंसलर्स होते हैं जो ये टेस्ट लेते हैं ना, they all are certified people, so they really know how to guide you. Probably you will be in the position of understanding that how you can get better insights from them. So अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी. एक बताया था कि बच्चे का इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए, जो आपको ये वाली रिपोर्ट से आ जाती है. आपको पता होना चाहिए फील्ड. Yes. Am I audible? Yeah. So second is the field that I said कि आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपको किस फील्ड में जाना है. पहले ये इंटरेस्ट को और फील्ड को मिलाइए. अब जहाँ इंटरेस्ट आता है वहां पे आ जाता है डिजायर. So desire is again one of the emotions that we all carry, but that emotion is linked to how much of energy you will get there. So everything is about the energy and the aura that creates. So if I am positive about what learning I'm going to take, 100% I will grow. Right? This is one learning. All of this plays a very
very important effort if the parent and the child both sit together and understand how will that career or that field or that interest add a value. So value addition of the knowledge is very important. Only these 3 points, if taken care of between the discussion of a parent and a child, or a counselor and a child, or the parent counselor and the child, so जितने भी combinations होते हैं फैमिली के अंदर फैमिली के बाहर, जितनों से भी आप बात करो, आपको समझना है कि वो जो बता रहे, will it create a value add in your life and does it excite you? The moment it excites you, just go for it. It will go with you and it will definitely take you where you want. Now I will soon come to the next level, is where जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ करा कि परसेंटेज के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं, तो ये जो छोटा सा इंसाइट था, इससे ये तो क्लियर मैं आपको बता रही हूँ कि परसेंटेज नहीं डिसाइड करता कि हमें कहाँ जाना चाहिए. परसेंटेज ने कभी भी डिसाइड नहीं किया कि हमने कहाँ जाना चाहिए. इट डज नॉट मैटर that whether you are an art student, whether you are a science student, whether you are a commerce student, ठीक है, right from the vendor who is selling a plastic bag to the vendor who's selling a mobile phone today, everybody are lakpati crorepati. So you have to decide where you want to reach ना. So उन्होंने, आप जो प्लास्टिक बैग बना रहे, जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, who have a good hold on their business, they might not even be a graduate probably, right? But they knew the path. उनको पता है उनको क्या करना था, उन्होंने उसको सीखा, उससे ही ग्रो किए और तब जाके वहां पे पहुंचे. एंड वी हैव एजुकेटेड पेरेंट्स, वी हैव सपोर्ट सिस्टम जो हमें पढ़ाना चाहते हैं. तो अगर हमारा विजन क्लियर होता है तो इट विल डेफिनेटली हेल्प. So I am going to just simply give you certain slides which will give you a clarity कि arts का मतलब ये नहीं है कि आपका 50% and below हुआ तो भैया arts कर लो. Arts has lot of value in the market today. Science has extremely unlimited value because the streams that you can study through science, at least I personally know more than 149 positions जो आपको मिल सकते हैं अगर आप science graduate हो. और आप कौन से लेवल से कौन से लेवल तक पहुंच सकते हैं, which I have already slightly discussed with Megha. So Megha said this is too much of topic, so we'll have one more session. So yeah, definitely we will be going in deep with all the topics once this initial round is done. So parents, be connected in our next Saturday sessions also. Okay. So ma'am, please continue yes. the next slide so that we are excited to. So एक कॉमन क्वेश्चन होता है सबका कि आर्ट्स कर लो परसेंटेज की वजह से. तो पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि इफ आई एम गोइंग टू गो फॉर आर्ट्स, what are the subjects that I have to learn in 11th and 12th? If you have understood the subjects that you have to learn in 11th and 12th, I have brought them down here. You have to select 6 of them by default. So it can be your choice. Then when you go to different colleges have elective subjects. जैसे कि यहाँ पे मैंने logic लिखा हुआ है. Logic is one of the elective subjects. कहीं कहीं पे आर्ट्स में भी आजकल कंप्यूटर्स आ गए हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स आ गए हैं. So there will always be additional elective subjects, लेकिन ये subjects 99% रहेंगे ही. अब इन सब्जेक्ट्स को आप लिंक कीजिए व्हाट टाइप ऑफ अ करियर यू वांट. सबसे पहले मैंने बोला है कि अगर आपने 11th 12th पढ़ा ही है तो आगे जाके आपको ग्रेजुएट बनना ही है. दिस इज बाय डिफॉल्ट दैट यू हैव टू टेक अ डिग्री बिकॉज दैट्स अ प्री रिक्वायरमेंट. इट इज नॉट कि ग्रेजुएट क्यों ही बनना है. करेक्ट. जो लोग ग्रेजुएट नहीं होते हैं, 12th करते हैं, तो उनका आगे करियर नहीं होता है क्या? उनका भी आगे करियर होता है, वो भी आगे करियर, दैट इज अगेन एंड डिफरेंट ऑरा ऑफ एजुकेशन, राइट? तो उनका भी आगे करियर होता है, उनके भी आगे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. बट द ग्रोथ एंड द इंडस्ट्री outside your school, outside your colleges, there is a very big industry which you have still to enter. You may probably enter, some may enter in 5 years, some may enter in 7 years, some even take 8 to 10 years to enter because they get into higher education. So lot of steps are there. लेकिन ये जो बेसिक पढ़ाई है ये तो अपने को करनी है, हम we cannot miss it. So if these are your subjects, based your career, जो आप करियर डिसाइड कर रहे हो उसको आप लिंक कीजिए. अब बैचलर्स ऑफ आर्ट्स जब बोलते हैं, बीए जब बोलते हैं, तो अगर आपने 11th और 12th आर्ट्स में किया है तो आप एक बीए ही बनोगे, इसके आगे किसी को कुछ नहीं पता. एग्जैक्टली. ठीक है.
अब ये देखो, अगर आपने बीए में डिग्री करना है तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाल दी कि आफ्टर बीए इन 12th आप क्या क्या कर सकते हो. इफ यू आर गुड एट ड्राइंग, it is a vocational study. Arts is a vocational study. If you're good at drawing it, if you're good at creativity, you have fine arts, you have fashion designing, you have interior designing. It is not mentioned here. Interior designing is also there. So one of the careers is that also. Then if you're good at communication and you have a good command on your English, right? I am also art student, huh? Which means I was not good at my percentage, and it never mattered. Till today, it does not matter. To be very true, what is very important is your confidence, your language control, and your understanding about what you want to become. Right? Can I interrupt you here? Yes, very much. I will at this moment I want to invite stopping you here and your slide. I'll invite a student and a parent who I have been communicating, okay, and with me I have counseled them. But वो जो mindset था, मैं बोल रही हूँ ना कि उन लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस लगा, बट दे हैव टेकन अ डिसीजन. बट मैं उनसे जानना चाहती हूँ बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स रिलेट कर पाए. तो अगर आप ये स्लाइड थोड़ा सा स्टॉप करें और मैं उनको इनवाइट करूं, दैट इज आदित्य बोरा. एंड मैं इन बीच में इसलिए बोला बिकॉज ये आर्ट्स का जो फील्ड था, जो डिस्कशन था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं आर्ट्स कॉमर्स में फ्लक्चुएट करते हैं. तो आदित्य का सिचुएशन ऐसा कुछ था. तो मैं उनके पेरेंट को और सीमा जी को और आदित्य को बोलूंगी अपना वीडियो ऑन करिए और हमारे साथ ज्वाइन करिए. और हाय सीमा जी एंड हेलो आदित्य. हेलो. कैसे हो? ठीक है. समझ में आ रहा है यहाँ पर जो चल रहा है आपको? हाँ. सो आप बताओ, जब आपने सोचा अपना, बिकॉज ही हैज जस्ट गिवन हिज 10th एंड ही हैज गॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स. सो उसके बाद उसने डिसीजन, आर्ट्स कॉमर्स का कंफ्यूजन था, राइट आदित्य? हाँ. आप बोलो अब कि मम्मी बोलेंगी. कैसे डिसीजन लिया और आपने क्या डिसीजन लिया है? बिकॉज सारी ऑडियंस आपको देख रही है, वो जानना चाहती है कि आपकी कंफ्यूजन स्टेट क्या थे, फिर फाइनली जब आपने डिसीजन लिया तो कैसे लिया. अड्रीना मैम हमारे साथ लाइव हैं, तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस ऑन इट. जो ले लिया कर लिया वो अलग है, फॉर्म्स भर दिए वो भी अलग है, बट आपका स्टेट ऑफ माइंड एज अ स्टूडेंट क्या था? मेरा 10th के बाद ये माइंड था कि मैं आर्ट्स ही लूंगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स थे वो मुझे शुरू से ही, जब से वो सब्जेक्ट जब से आए, मतलब जब से मैं पढ़ाई करने चालू की थी तब से जब आए, तब मुझे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगा. वो इंटरेस्ट करते करते मार्क्स भी इसमें अच्छा आने लगे, समझ में भी अच्छा आ रहा था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालना अच्छा लग रहा था. उसके बाद जो वो सब्जेक्ट्स थे उसकी फील्ड भी मैंने देखी थी, तो मैंने और ठान लिया कि देखिए आर्ट्स ही लेना है. लेकिन उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि आर्ट्स में लेंदी कोर्स ज़्यादा है, पर मुझे इतना कुछ था नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट में मुझे स्टार्टिंग से पता था और मैं वो एक्सपीरियंस भी कर चुका था. तो पर जो मैंने बुक्स देखी, जो सब्जेक्ट्स देखे, वो नॉर्मल थे जो मैंने पढ़ चुके थे, और क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं था. लेकिन जो थियरी जैसी होती है, मतलब उसमें जो कोर्स था वो बहुत ज्यादा लेंदी था, उसको लिखना मतलब बहुत हेडेक था, और लर्न करना तो ज्यादा ही था. तो जैसे मतलब वो समझ में तो मुझे आ जाता, क्योंकि मेरे लिए वो सब्जेक्ट बहुत पसंदीदा था. लेकिन जो लिखना था, लिखने में मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा ही लिखना ओवर हो जाता है. मतलब मैं ज्यादा लिख भी नहीं सकता इतना भी, क्योंकि उस पे आर्ट्स में सिर्फ लिखने पे मार्क्स मिलते हैं, चाहे आप में कितनी भी नॉलेज हो, जितना लिखोगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे. लेकिन फिर अगर मैंने कॉमर्स का देखा, फिर मुझे थोड़ा लगा कि ठीक है, नॉर्मल सब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, कभी देखा भी नहीं ना, कभी जानने की कोशिश की है. लेकिन मैंने जब देखा तो थोड़ा इजी लगा. थोड़ा पहले का भी था स्कूल का कोर्स, उसमें एडेड, तो मैंने सोचा एक बार इसको भी ट्राई कर लेते. फिर मैंने पूछताछ की, दोस्तों से भी बात की, उसके बाद ये मालूम पड़ा ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है. बस ये मन में था कि मैथ्स लेना है कि कोई और सब्जेक्ट लेना है, बस उसके पीछे था मेरा टकराव. तो उसमें मैंने
मैथ्स छोड़ दिया क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से मैथ्स से बहुत आपको प्रॉब्लम थी मिल रही थी, बचपन से जैसे ही। मैंने आपको बताया कि मैथ्स थोड़ा सा आपके उसके हिसाब से थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा है, राइट? हाँ हाँ हाँ। फिर जो मैथ्स अकाउंट था, मैं आपको हम्म, उसमें मेरे को इतना हार्ड नहीं लगा क्योंकि उसमें मोस्टली थियरी और थोड़े सम्स तो उसमें है ही, लेकिन वो भी ज्यादा हार्ड नहीं, सिर्फ प्लस माइनस था और बाकी सब थियरी है। तो फिर बाकी बचा बस मैथ्स था और बाकी तो सब इजी है, इकोनॉमिक्स और वो। तो उसमें मैथ्स मैंने छोड़ ही दिया था, मेरे को लेना नहीं था चाहे कितना भी फोर्स कर ले कोई। तो फिर मैंने दूसरा एसपी सब्जेक्ट लिया, बस इतना ही था। ओके। सीमा जी, Good. आप क्या बोलेंगे? आप कितनी असमंजस में थे जब तक आपने फॉर्म भरे नहीं थे, और उससे पहले और उसके बाद? बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे जब ये आर्ट्स और कॉमर्स के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहा था। पर हमने इसको समझाया कि आर्ट्स लेने कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इसका आईएएस करने का बहुत मन है। पर हमने कहा कि कॉमर्स लेके भी तो शायद आईएएस का ले सकता है, आगे कर सकता है आईएएस के लिए। थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि आर्ट्स का लेके इजी हो रहता है, पर कॉमर्स लेके भी हम कर सकते हैं। तो फिर हमने आगे का फ्यूचर भी देखा कि अगर कॉमर्स नहीं लेता है, इन फ्यूचर आर्ट्स में इसने आईएएस में कुछ नहीं कर पाया, तो आगे जाके बिजनेस तो संभालना ही है, या फिर मतलब अकाउंट तो आना ही चाहिए एक मारवाड़ी होने के नाते। तो इसलिए हमने कॉमर्स के लिए इसको फोर्स किया। के हिसाब से होना ही पड़ेगा, क्या करें। क्योंकि अकाउंट होना तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, नहीं होगा तो कैसे संभालेगा आगे का बड़ा, फ्यूचर। इसीलिए उसको फ्यूचर तो देखना ही पड़ता है ना। अगर आज ही हम ऐसे सोचेंगे नहीं तो फिर क्या, फ्यूचर तो देखना पड़ेगा। क्योंकि आईएएस में अगर नंबर नहीं लगता, क्योंकि इसको आईएएस में ही जाना है, इन फ्यूचर कर भी सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आगे की सेफ्टी भी हमें तो देखनी ही पड़ेगी। इसलिए हमें कॉमर्स दिलाया। और कॉमर्स में भी इसको लॉजिक है थोड़ा बहुत अकाउंट्स का, पर ठीक है कर लेगा। थोड़ा तो कोशिश करना ही पड़ेगा इसी सब्जेक्ट में। और मैथ्स का है तो मैथ्स की जगह हमने इसको एसपी दिलाया। पर अभी आगे का मुझे ये टेंशन है कि अगर ग्रेजुएशन में इसका एसपी काम आता है या नहीं आता, मैथ्स नहीं उसमें मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे नहीं मालूम है। ये तो मैम ही बता सकती है, आप बता दो। बस इसी के लिए हमने एक ऐसा रखा है, सोच लीजिए कि आप जैसे हजारों पेरेंट्स होंगे जो इस स्टेट बहुत बहुत डिफिकल्टी होती है डिसीजन लेने, बच्चे भी नहीं ले पाते और हम भी नहीं ले पाते। पर शायद ये मुझे पता चला कि मैथ्स इसके लायक नहीं है, तो फिर तो समझ में आ गया कि मुझे इसको क्या दिलाना है। वो गाइडेंस आपको काम आई, उसके हिसाब से आपने डिसीजंस लिए। और कुछ बोलना चाहेंगे? फिर मैं ड्रीना मैम को दूंगी माइक की, बोलिए। बस अभी आगे तो मुझे अभी ये 11th-12th के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या करना चाहिए। तो अभी तो मैंने सोचा नहीं है, अभी 11th-12th का देखते हैं। फिर लॉजिक का ही प्रॉब्लम है, तो जब कोई लेना चाहता है ऐसा तो अपने अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट ले, नहीं तो मत ले। जो आपके अकॉर्डिंग है, ये टेस्ट कराने के बाद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो होता है, पर आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, वो ही ले। तो इवैल्यूएशन हमारे पास दो तरीके से होते हैं बेसिकली, जो काउंसलर्स का रोल होता है ना। एक तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू या साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू करते हैं। एक हम लोग कर रहे हैं डर्मोटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी पे करते हैं। तो ये सारे टेस्ट जैसे शायद आपने करवाया हुआ है डीएमआईटी टेस्ट, आपको एक रास्ता मिला होगा कि आपको क्या उसको करवाना चाहिए। तो ये तरीके से हम सारे बच्चों को एक गाइडेंस देते हैं, प्लस उनका इंटरेस्ट, जो मैम ने बोला कि हर बच्चे को आप बचपन से ऑब्जर्व करें कि किस उसमें उनको जाना चाहिए या उनका इंटरेस्ट क्या है, जो चेंज होता रहेगा, बट वो हमको ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल किस में वो रुक रहा है। करेक्ट रीना मैम? Yes, yes, very correct, ma'am. तो आप अभी इनके कंफ्यूजन को थोड़ा और हाईलाइट या तो इनलाइटन। जैसे कि मैम ने बोला है, सीमा ने बोला है कि आदित्य वांट्स टू गेट इनटू आईएएस। तो आइडियली आईएएस, अगेन जैसे आपका मैथ्स का कंफ्यूजन था, आईएएस के लिए भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आईएएस इज एन गवर्नमेंट एग्जाम। अगेन उस एग्जाम में हमको क्या सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, आपका मैथ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी सवाल नहीं रहता उसमें। होता है सिर्फ जीके, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज। मैं वापस बता रही हूँ, नॉलेज उसमें होता है आपका जीके, जनरल नॉलेज कितना स्ट्रांग है, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता है या नहीं, करंट मिनिस्ट्री में कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, उस पोजीशन में पहुंचने के लिए क्या नॉलेज लगता है, क्या डिजिग्नेशन लगता है, ये सारी चीजों को मिला के आईएएस की एंट्रेंस होती है। तो
अब ये वाला जो मैं बता रही हूँ ना, ये कंटेंट तो किसी में भी नहीं है, ना आर्ट्स में, ना साइंस में, ना कॉमर्स में। ये पूरा हमारा, हम कितने दुनिया से कनेक्टेड है, कितने हमारे देश को जानते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेके बच्चा आईएएस में जाता है। अब ये आईएएस एक तरफ हो गया। आज उसने अभी कॉमर्स लिया है, वो आगे जाके, जैसे हमारी बात हुई है एक बारी, तो उसको अगर आगे जाके बीएमएस करना है, तो अब तो ऐसा है कि अगर आप आर्ट्स से करो तो भी आप बीएमएस में जा सकते हो, कॉमर्स से करो तो भी बीएमएस में जा सकते हो, साइंस से करो तो भी बीएमएस में जा सकते हो। हमने मैनेजमेंट स्टडीज कर ली, मैनेजमेंट स्टडीज में हम कहाँ पे भी आगे जाएंगे, तो मैनेजमेंट स्टडीज में ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी का बिजनेस चलाओगे या खुद का बिजनेस चलाओगे, हर जगह पे मैथ्स तो आना है। बट फॉर दैट, एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी, यू नो, कि मैथमेटिशियन उसको नहीं बनना है, उसे रेगुलर मैथ्स ही जानना है, जो उसने 5वीं तक सीखा होगा, 6वीं तक सीखा होगा, उसी के अंदर हमारी दुनिया बसती है, राइट। तो इट्स अ बेसिक मैथ्स। हाँ, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमें एक्सपीरियंस सिखाता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स करेंगे, उसके जो कैलकुलेशंस होंगे, राइट, क्योंकि अगर आप एक कॉलेज का ही पकड़ लो या फिर किसी इंस्टीट्यूट का पकड़ लो, वहां पे हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, वो कैलकुलेशंस इस लेवल पे होती है कि एक बच्चा 1 मिनट के लिए आके एक जगह पे बैठेगा और एक चेयर पे बैठा, तो उस चेयर का क्या कॉस्ट है, या उस चेयर पे बैठे हुए उस 1 मिनट का कॉस्ट क्या है, ये इस लेवल तक का कॉस्टिंग निकलता है। और आजकल इतने सारे टूल्स बने हुए हैं कि हमारी लाइफ थोड़ी आसानी है डिजिटलाइजेशन में, इसीलिए हमारी लाइफ आसान की है। तो जब तक ये ग्रेजुएट होंगे, तब तक द सिस्टम्स विल गेट मोर एडवांस, सो दे नीड टू बी अपडेटेड विद करंट स्टेटस। आई होप सीमा जी दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प। उनका शायद वॉइस वॉइस नहीं आ रहा उनका, नहीं आ रहा है, बट आई थिंक उनको समझ में आ रहा है। तो अब आदित्य, मैंने आर्ट्स पे ब्रेक इसलिए लगाया था कि आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि आर्ट्स के थ्रू कितने करियर्स थे। अब वी विल गो अगेन बैक टू रीना मैम स्लाइड, बिकॉज टाइम हमारे पास आधे घंटे का ही है, एंड आई हैव अ स्टूडेंट ऑफ 12th ऑल्सो जो ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम मैम का स्लाइड देखते हैं और समझते हैं उन्होंने और क्या क्या हमारे लिए इंफॉर्मेशन गैदर किया है। आदित्य, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, म्यूट रख सकते हो। ग्रेट। यस मैम, प्लीज। तो आते हैं हम साइंस पे। अब साइंस, तो अगर आप किसी भी बच्चे ने कभी भी अगर किसी भी केमिकल्स में, मेडिकल्स में, इन में इंटरेस्ट नहीं रखा है, तो ये स्लाइड उसको बिल्कुल भी स्किप आउट होगा। बट जो बच्चे का थोड़ा भी इंटरेस्ट है, जो क्लियर है कि भाई आगे जाके आई वांट टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ मेडिकल्स, आई वांट टू गेट इनटू द फील्ड्स ऑफ बायो, आई वांट टू लर्न प्लांट्स, आई वांट टू लर्न नेचर। तो मैंने कहा ना, हर बच्चे का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट साइंस रहा है, तो दीज आर द कॉमन टर्म्स दैट यू विल हियर, राइट। नाउ देयर इज समथिंग, आई हैव टेकन मेनी स्लाइड्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा, साइंस इज वन फील्ड which comes with n number of options, and one session or an half an hour 10-minute session is extremely short session for us to cover science. It is not going to be easy to speak everything about science. So like any given time आपको 6 subjects लेने हैं, तो आप जो combination लोगे, अगर आपको मेडिकल में जाना है, स्पेसिफिकली मेडिकल में जाना है, तो किस टाइप का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और आ जाएं। लेकिन अगर ये 5 सब्जेक्ट आपने नहीं करी है, तो यू मे हैव अ चैलेंज। So you have to be very clear that what type of topics you can get into. Then you want to take science, but your medical is not your interest or medical is not your focus. तो आप क्या कर सकते हो? दूसरा, साइंस में ये ऑप्शन भी है, आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो, आप 10th स्टैंडर्ड में, आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो कि आपको मेडिकल लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरा कैलिबर कितना है, मेरी एनर्जी कितनी है, ये अगर आप नहीं समझ पाए हो, तो यू ऑल्सो हैव एन ऑल्टरनेट सब्जेक्ट जहाँ पे अश्योरिटी है कि आप अगर ये सेक्शन लेते हो, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एंटर इन, राइट। नाउ PCM is such a beautiful combination in the education system कि बहुत सारे करियर्स ऐसे हैं जहाँ पे PCM has high value, right? So I will give a slight insight कि डिग्री जो आप BSc में जो आप कर सकते हो, साइंस, जब साइंस आ जाता है तो वो हो जाता है बैचलर ऑफ साइंस, लेकिन इसके आगे भी साइंस हैज एंटर्ड इनटू डिफरेंट फील्ड्स। After doing BSc, you can also after doing 12th science, you can also become a BTech through science. You can also become a BVoc, that's an vocational study. So science has openings for all streams. तो जो बच्चे साइंस सोचे हैं या साइंस में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स दैट कैन गो, राइट। तो अगर आप देखोगे, जो फैशन की इंडस्ट्री है,
जब वहां पे हम सोचते हैं कि क्या ही साइंस लगेगा, वहां पे भी साइंस लगता है कि कौन से टाइप पे कपड़े पे कौन सा कलर का रंग चढ़ेगा, उसके पीछे क्या केमिकल यूज होना चाहिए, कपड़ा कितने केमिकल लगने से फटेगा नहीं फटेगा, इसके डिटेलिंग जाती है टेक्नोलॉजी में। मशीनरीज क्रिएट होती हैं जिसके लिए साइंस लगती है। तो देर इज लॉट ऑफ things which are available. Jewelry today, we can completely, we can design a jewelry on digital platform, and we have a machine which will create the jewelry all over on its own, and this is all the magic of science, right? So बहुत सारे options available हैं जो हम science के through ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम science में और deep जाएं तो इफ यू आर सेलेक्टिंग पीसीएम एज अ सब्जेक्ट, जो मैं अभी बस 2 स्लाइड पहले आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप आईआईटी में भी जा सकते हैं साइंस लेने के बाद, 12th के बाद उसके प्रिपरेशंस होते हैं डेफिनेटली, जो आपको 11th के साथ ही स्टार्ट करनी होती है। बट यू नीड टू टेक अ क्लैरिटी कि इंजीनियरिंग में जाना है मुझे तो मुझे क्या करना होगा, अगर रेगुलर बीएससी ले रही हो तो मैं क्या क्या कर सकते हैं, और अगर अदर फील्ड्स में जाना है तो मैं क्या क्या फील्ड्स में जा सकते हैं। तो ऐसे यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। This is where I said no in the start, Meghaji, that we have 149 fields. It is so vast that the graph of science cannot be brought in a PPT. You have to break it into many pieces for an individual to understand, unless he has found out his interest and assured that field is going to be science. And now I want to take the information कि मैं कैसे हो सकता हूँ, तो आप उस इंटरेस्ट और फील्ड को अटैच करके फिर उनको सिर्फ वो ग्राफ और उसके अंदर की पढ़ाई बता सकते हैं। So science takes a completely different session of giving you on education front, right? Next, going forward, this is a much brief thing that I try to, scrutinize everything of science into this. तो जैसे IAS हमने बताया था, तो अगर आपको IAS बनना है तो आर्ट साइंस कॉमर्स डज नॉट मैटर, 12th इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स हैं, ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, आपको नेशन के लिए कुछ करना है, आपको गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब चाहिए, आपको आरबीआई ज्वाइन करना है, मास मीडिया ज्वाइन करना है, होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना है, आप साइंस लीजिए एंड ऑल दी स्ट्रीम्स आर ओपन फॉर यू। सो साइंस इज नॉट डिफाइंड ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज। अगेन ठीक है, आपका परसेंटेज कम आया, कोई नोन कॉलेज नहीं है, रेगुलर कॉलेज है, 12th आप किसी भी जूनियर कॉलेज से कर सकते हो, लेकिन अगर आप साइंस लेते हो तो यू हैव ऑल दी स्ट्रीम्स ओपन, ऑल दी स्ट्रीम्स। जो मैंने आर्ट्स में बताया वो भी ओपन हो जाते हैं, जो कॉमर्स में बताया वो भी ओपन हो जाते हैं, क्योंकि साइंस एक स्ट्रीम है जो 12th के बाद आप बीए भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो और बीएससी में कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर आपने कॉमर्स एंड आर्ट्स किया है तो आप बीएससी नहीं कर सकते, आप साइंस की किसी फील्ड में नहीं आ सकते, आप मेडिकल में नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी मेडिकल की पढ़ाई नहीं हुई है, बेसिक पढ़ाई नहीं हुई है, समझ रहे हो? तो उसके अलावा सारा ही फील्ड ओपन हो जाता है साइंस के बच्चे के लिए, राइट? तो साइंस के एवेन्यूज ज्यादा है आपके हिसाब से? एवेन्यूज ज्यादा है मेरे हिसाब से, नहीं, ये डेटा बोलता है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली आपके डेटा के हिसाब से डेटा बोलता है, दिस इज अ फैक्ट। इवन इफ यू गो एंड चेक आउट फॉर जॉब प्रोफाइल्स, आइडियली ग्रेजुएशन के बाद जहाँ पे भी हम जाते हैं ना, वहाँ पे आपकी डिग्री का वैल्यू नहीं रहता है, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है क्या आप ग्रेजुएट है, हाँ या ना, यही चाहिए उनको। बाकी जितनी भी कंपनीज में हम इंटरव्यू देने जाते हैं वो अगेन चेक करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जीके, योर अलर्टनेस टुवर्ड्स द करंट सिनेरियो ऑफ द नेशन, योर अलर्टनेस टू व्हाट आर द करंट अपडेट्स। अगर आप ये हमेशा जानिए कि आपका इंफॉर्मेशन, करंट इंफॉर्मेशन जितना स्ट्रांग है, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज द फ्यूचर एंड स्टार्ट वर्किंग। बिकॉज आज अगर जॉब मिल रहा है तो आप उस कंपनी के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो। आज कोई कंपनी ऐसा नहीं खड़ा है कि आज अगर आप नहीं गए तो कंपनी नहीं चलेगी, which is a fact, right? So your parents will be the best people to explain you what I am saying, this part of it, that when you go in a company and you get an opportunity to enter the company, you are not there only because if you are not there the company will not run, you are there because company wants you for a future alliance. So you need to understand कि अब आगे क्या होगा ये आप visualize कर पाओ, so you have to be connected with the current general knowledge and the current issues which are happening in the nation. So audience and kids and parents, general knowledge is must. So current scenarios बच्चे को update कराते रहने का. Yes ma'am, next. So now that was all about science. I quickly move to commerce. While we talk about commerce, again commerce is a very simple world.
ठीक है, जितने भी हमने तो जब से बचपन से सुनते आया, अच्छा तुमको परसेंटेज कुछ भी आया हो, तुमको बैंकर बनना है, अगर तुमको बैंक में नौकरी करनी है तो तुमने कॉमर्स लेना है। क्यों? बिकॉज नंबर्स, यू आर ऑल द टाइम अराउंड नंबर्स, यू आर कैलकुलेटिंग थिंग्स, you are doing a balance sheet, you are going to create audits for companies, you are going to create balance sheets for companies, you are going to work on a profit and loss of the company, you're going to tell the company whether they can hire people and do you have money for that or no. So there are so many roles that an person does in commerce account apart from accounts. The entire world, at least I feel this is only in India, this is my truly study in my experience of last 16 years in the market. बीकॉम ग्रेजुएट हो गया बच्चा भी टीवाई में है, ठीक है, टीवाई में अगर बीकॉम का बच्चा आपने जाके क्लास में पूछ लिया आफ्टर बीकॉम आपको क्या करना है, तो यू विल गेट एटलीस्ट 60% ऑफ द क्राउड सिंग कि उनको अकाउंटेंट बनना है। एक कंपनी में कितने अकाउंटेंट रखेंगे? और आजकल तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ गए हैं, सीआरएम आ गए हैं, तो अकाउंटेंट्स के काम भी लिमिटेड हो गए हैं। प्रोफाइल तो पूरा ऐसा है कि आप डेटा एंटर कर दो, सिस्टम बाकी सारा कर लेगा, कैलकुलेट और सब करके आपको दे देगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर हम कॉमर्स ले रहे हैं, सो व्हाट इज द करियर इन कॉमर्स फर्दर, राइट? सो अगेन कॉमर्स इज नॉट दैट मैथ्स के मार्क्स अच्छे हैं इसलिए कॉमर्स करो, कि आपको मैथ्स में आगे क्या करना है ये समझ के फिर कॉमर्स करना अगेन इंपॉर्टेंट है, based your interest. So these are the streams that you will generally see into commerce as an BCom graduate. You can be a BBA graduate, you can be a BM, then there is BAF. So these are all sub degrees into BCom where you will specialize and you will master. तो मैम मैं आपको यहाँ पर स्टॉप करूंगी, और एक हमारे और बच्ची जुड़ी हुई है हमारे साथ में, और वो 12th में है और वो इसी सब चीजों से रिलेटेड है, तो बैफ मैंने उसके सुना है। सो आशी कौर सोहाल, ओके, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू दीना डिसूजा मैम, शी इज अ प्रोडक्ट हेड ऑफ आदित्य कॉलेज। ओके, सो आप उनसे जानिए जो कंफ्यूजन आज हमने डिस्कस किया था कि आप कुछ परसेंटेज की वजह से आपको एचआर नहीं मिला, बट आप जो अप्लाई कर रहे हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसके बारे में मैम से डिस्कस करूं। आई होप आपको इंसाइट मिल रहा है यहाँ पर। हाय आशीष, बताओ बेटा क्या जानना चाहोगे आप, क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको? काफी मेरे को इतना साइंस के बारे में भी पहले पता नहीं था जितना अभी पता चला है। करो बच्चा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, यस यस बोलो आशीष, बोल बेटा। मुझे साइंस के बारे में भी काफी पता चला, मेरे को पहले नहीं पता था इतना। आई जस्ट चूज कॉमर्स आफ्टर 10th विदाउट थिंकिंग मच, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं था। अभी ज्यादा कंफ्यूजन है 12th के बाद मोस्टली। आई वाज कंफ्यूज बिटवीन BAF एंड BFM, फाइनेंशियल मार्केट्स और ये अकाउंटिंग का, बट फ्यूचर में शायद मुझे अकाउंट में कुछ करना हो या फाइनेंस में, इसलिए मैंने BAF चूज किया। बट मेरे परसेंटेज है अच्छे, बट फिर भी ये आजकल कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है कॉलेजेस के, इसलिए मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, HR या NN में नहीं मिला। अच्छा, but you were clear that you want to get into BAF or BFM? Yeah. Okay. So when we say कि अगर आप BAF में जा रहे हो, ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जैसे मैंने अभी जस्ट एड्रेस किया 2 मिनट पहले कि commerce is more than accounts. You agree? Yes. Right? So now when we say commerce is more than accounts, अगर आप एक accountant, this is just a simple insight to you कि एक accountant का लाइफ कैसे स्टार्ट होता है, right? अगर आप सिर्फ बैफ करते हो और उसके बाद बोलते हो मुझे बैफ का नॉलेज है एंड आई वुड वांट टू गो एंड स्टार्ट अ करियर एज एन अकाउंटेंट, और आई वुड हैंडल अकाउंट ऑफ एन गिवन ऑर्गेनाइजेशन, यू वुड स्टार्ट एज एन अकाउंटेंट। बट आइडियली कैसे हो जाता है कि करंट अगर आप जॉब प्रोफाइल स्टडी करो, पहले तो आप यू आर एट द वेरी राइट टाइम टू स्टडी द जॉब प्रोफाइल्स इन द मार्केट, राइट? क्योंकि 3 years डाउन द लाइन यू हैव टू गो एंड इंटरव्यू समवेयर एंड गेट योरसेल्फ अ क्वालिफाइंग जॉब, राइट? तो अकाउंटेंट विल स्टार्ट विद व्हाट काइंड ऑफ एन सैलरी प्रोफाइल। आज मैं आपको अमाउंट बता सकती हूँ क्योंकि अभी आप 12th किए हुए हो एंड यू नो द वैल्यू फॉर मनी, राइट? सो after completing your 12th, there are after completing your graduation, there are chances that you would like to take some experience first. So generally after graduation, students go and join some CA
who would give them a mentoring about how the GST works or how the paperwork are done, how the organization works. ये सारा नॉलेज आपको पहले होना चाहिए. देखो, अकाउंटेंट इज अ वेरी क्रिटिकल प्रोफाइल. आपके हाथ में कंपनी का पूरा पैसा आ जाता है, वो पैसा सही जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे कोई गलतियां नहीं हो सकती है. Then the second thing is either you will work only on Tally, that is another platform of data entry. आप एक सॉफ्टवेयर के सामने बैठे हो, आपके पास पैसे का इंफॉर्मेशन आ रहा है, आप उसको अपडेट करते जा रहे हो, and then you'll slowly and steadily learn how to extract that information and get it in place, right? So this is different types of flows that you will learn about being an accountant. If you specifically take yourself that I want to get into only accounts, when you are getting into accounts also, accounts में और क्या क्या options है जो एक्चुअली मैं तुमको सजेस्ट करूंगी कि तुम नेक्स्ट सैटरडे वाले सेशन में भी बैठो, जहाँ पे हम फर्दर बताएंगे कि अगर आपने बैफ किया है तो बैफ के थ्रू और क्या क्या करियर्स हैं. जैसे कि यू कैन ऑप्ट फॉर एन MBA इन फाइनेंस and get properly into an organization which is in finance organization and handling A grade clients. So there are bigger clients that you handle, and वहां पे हम thousands में या lakhs में numbers नहीं count करते. वहां पे आपकी deals होती है करोड़ों में. आप किसी कंपनी का पूरा पूरा अकाउंट होल्ड कर लेते हो, and you know in and out of that company. So your job in any organization, the role that you're looking forward to get into becomes a very critical profile, right? Because this is that information जो शायद उसके खुद ओनर को भी नहीं पता होगा भाई कितना है क्या है, बट एक अकाउंटेंट को पता होता है. एंड दिस इज वन प्रोफाइल विच आस्क फॉर लॉट ऑफ ट्रस्ट, which asks for a lot of, so there every profile, every job has an ask. And when it comes to an accountant's profile or an finance head profile or any profile where you are going to handle accounts of somebody, it asks for a lot of responsibilities. So you need to ensure that you are building that capabilities, that people can help you, and your communication has to be so strong, so crisp, so clear that any company who will after talking to you feel like yes, this is the person we are looking for, ये है जो हमारे कंपनी पे कंट्रोल रख सकती है. तो आप अकाउंटेंट ऐसे भी रहते हैं जो बोलते हैं कि नहीं ये वाले अकाउंट से बहुत पैसे जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे काम रोकना है. आप जाके अपना स्टेक देते हो, तब जाके कंपनी रिव्यूज लेती है, डिसाइड करती है. तो lot of work is there on this profile if you're planning to take a bath, right? What would be your next step? इसके further details we have a senior profile sir जिनको हमने invite किया है, जो आपको और highlights डालेंगे और वो आपको actual scenarios देंगे कि आज की कंपनी में क्या चलता है, जो कि हम next session में देंगे. So I personally feel Megha ji, I would like to invite her to be there. Yes, because that her answer can be beautifully answered. अपने करियर का प्रोफेशनल आउटलुक आशीष. Yes. Because उसी से आप so हमारे जितने ऑडियंस ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता यार. तुम वहां चली गई HR में और तुमको फैकल्टी पसंद नहीं आई तो समझा ही नहीं तुमको सर मैडम क्या पढ़ा रहे हैं तो. लेकिन जो जिस कॉलेज में एडमिशन मिल गया ना, उस कॉलेज से पढ़ लो, तुम वहां की शायद फैकल्टी तुम्हारी इंस्पिरेशन हो जाए. उनका पढ़ाया ही तो इतना अच्छा. हिसाब से कोई मुंबई में फिलहाल कौन से कॉलेज? आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए तो सभी अच्छे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सालों से वही सिलेबस चल रहा है, इसलिए वो टेंशन मत लो. कुछ भी आप पढ़ोगे तो यू आर गोइंग टू टेक एन एडिशनल इनपुट फ्रॉम एक्सपर्ट क्लासेस, राइट? एंड देयर यू नीड टू पुट योर राइट एफर्ट्स, यू विल गेट द राइट कनेक्शन देयर. क्योंकि कॉलेज में देखो, हम खुद भी कॉलेज चला रहे हैं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, द ट्रेनर्स हैव वेरी लिमिटेड टाइम, so they cannot give you in-depth information. That is why we require tutorials. And when you join tutors, they help you to take that external insight also of the inputs of what has to happen. So there is nothing called as good college, bad college or poor college. What is important is आपका traveling availability, आपका being with that campus, right? Probably today you will get most of the reviews on Google only. तो आप Google कर सकते हो, confirm कर सकते हो आपका feedback, right? And then you can take your decision of choosing the college. So there are a lot of platforms available. Then there are a lot of organizations available जो कि है ना कॉलेज के बिहाफ में काम करती हैं. तो जब आप उनको अप्रोच करोगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि ये कॉलेज का बेनिफिट्स क्या है या कॉलेज में आपको डिफरेंट क्या मिलता है. बिकॉज we cannot put any college down, we cannot put any thing down, because सब लोग जो फॉलो कर रहे हैं ना वो एक ही यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी. जो हम पढ़ा रहे कॉलेजेस के अंदर वो सिलेबस है जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, और वो अप्रूव्ड सिलेबस है. उस सिलेबस से ही हमारी डिग्री आनी है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो जो सिलेबस, क्योंकि फैकल्टी क्या पढ़ा रहा है वही पढ़ा रहा है जो सिलेबस में है.
तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन की कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन सारे कॉलेजेस सेम ही देंगे, पढ़ाना सारे कॉलेज का सेम ही होगा। हाँ, तरीका अलग होता है, क्योंकि मेघा जी जब बताती है तो बहुत प्यार से बताती है, मैं जब बताती हूँ तो बहुत अथॉरिटी से बताती हूँ, तो सबका अलग अलग होता है ना। मे बी बिकॉज माई वॉइस इज लिटिल स्ट्रॉन्गर, हर वॉइस इज वेरी स्वीट, योर वॉइस इज इवन मोर स्वीटर, सो इट इज हाउ वी ऑल पुट इट, राइट। सो इट इज नॉट अबाउट कि मुझे अच्छा कॉलेज से क्या होता है कि एम्बियंस अच्छा हो, खाना अच्छा हो। अब वहां का खाना अच्छा नहीं लगा, तुम घर से ले जाओ, पक्का अच्छा लगेगा। So this is only two things that you can see in a college: the ambience and the food around. Training will never have any adjustments. जितना सिलेबस है, जो पढ़ाना है, जो बच्चे के पास नॉलेज होना चाहिए, जिसके की एग्जाम में आने वाला है, वो सारा कवर होता है, हर कॉलेज में कवर होता है, कहीं पे भी उसका डिफरेंशिएशन नहीं रहता। मैंने जो चूज किया वो एक्चुअली ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो शायद उनका रूल कुछ अलग हो, पता नहीं। रूल्स मिठी अलग हो बाई, सकते हैं। मिठी बाई लिया है तुमने? हाँ। तो बेस्ट कॉलेज है। और क्या चाहिए। हाँ, बेस्ट कॉलेज है, लोग तो लड़ते हैं वहां जाने के लिए, मिलता नहीं है उनको सीट जल्दी। और कहाँ रहते हो आप? कांदिवली। अच्छा, तो नजदीक ही है ना फिर आपको। और अभी तो चलो सब कुछ ऑनलाइन ही होना है काफी टाइम तक, हाँ हाँ वही। तो एंजॉय। बेस्ट कॉलेज इज होम एंड यू लर्न फ्रॉम होम। सो आशी, और कुछ है जो आपको पूछना था मैम से या मुझसे, या ऑडियंस को कुछ बताना है आपको? मैम से एक चीज पूछनी थी कि मतलब बिसाइड्स अकाउंट्स, अगर मुझे फाइनेंस में जाना हो, जैसे बीएफएम है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स, तो वो भी अच्छा है, मतलब उसका स्कोप? जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स बोलते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट्स इज अ वेरी बिग टर्म इनटू फाइनेंस इंडस्ट्री। उसमें आपके कैपिटल मार्केट हो गए, शेयर्स आ गए, फिर स्टॉक मार्केट आ गया है, फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब when we are taking a role again everywhere and account, whenever there is anything related to finance, all the designations come in link with account holding, right? So even if you get into share market, you will hold an share market account of a company, और उस कंपनी के पास कितना पैसा है, वो कंपनी का तुम प्रॉफिट लॉस रेशियो स्टडी करोगी, तुम एनालाइज करोगी कि कौन सा शेयर्स ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उसमें से प्रॉफिट कितने आते हैं, एंड यू वुड बिकम एन एडवाइजर. So ideally, when you took commerce and you decide to enter into the finance world, you are more into the advisory situation where anybody and everybody who has money and wants to invest or save their money. तो इन्वेस्ट करने का मतलब होता है बचा के रखना, और जगह और पोजीशन उन्हीं लोगों को अच्छी मिलती है, या नाम उन्हीं लोगों का इस इंडस्ट्री में अच्छा होता है जो किसी को प्रॉफिट करके दे। अगर किसी के डिसीजन में गलती हो गई, कहीं पे तुमने इन्वेस्ट किया और नुकसान होने लग गया, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है पोजीशन को स्टेबलाइज करना। लेकिन अदरवाइज इफ यू ज्वाइन अ गुड ब्रांड, जैसे कि अगर हमने बोल दिया कि आपने L&T ज्वाइन कर लिया है, या आपने एक्सेंचर ज्वाइन कर लिया, ऐसे वाले कंपनी के फाइनेंस डिविजन हैंडल के लिए हैंडल कर रहे हो, या कोई ऐसी कंपनी हैंडल ज्वाइन की है जो कि मल्टीपल कंपनीज को हैंडल करती है और उसमें से किसी एक टीम में आप हो, तो योर पोजिशनिंग ओवर देयर will make, so it is again important ki what type of a company you would want to get into. So when we talk about share market, so again it is about interest. You will have to continuously be in connect with that market, और market की studies अगर आप check करोगे तो it is when you are working in an organization, एक बेस्ट चीज है, अगर आप उस वाली इंडस्ट्री में चले जाती हो तो आपकी शिफ्ट अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है और दोपहर को 4 साढ़े 4 बजे तक आप फ्री हो जाते हो, ठीक है। जो लोग उस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका कंफर्म सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। वहीं पे अगर आप अकाउंटेंट बन के काम करो, या किसी सीए के कंपनी में काम कर लो, या किसी और कंपनी में काम कर लो, कंपनी को आपकी जब तक जरूरत है या जो कंडीशंस रहते हैं उसके हिसाब से आप काम करोगे। तो अगेन देयर आर लॉट ऑफ, व्हेन वी आर वर्किंग विद एनी कंपनी और वी आर वर्किंग विद अ ब्रांड, वी विल सी our interest also and company will see their interest also, और जब दोनों का इंटरेस्ट मैच होता है तब वो मैरिज होता है कि हाँ ये भाई हमारा कंपनी का एम्प्लॉय बनने लायक है। तो देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच वुड कम हियर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, तो कैपिटल मार्केट, उसके अंदर क्या क्या आता है, कितने डेजिग्नेशंस है, वो सारे आपको देख के फिर उसमें स्टडी करना है। तो यू विल बी स्टडिंग एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। सो व्हेन वी से मार्केट में आप, ऐसा नहीं है कि जो आपने अकाउंट्स में सीखा है या व्हाट यू वांट टू डू इन अकाउंट्स इज नॉट इंक्लूडेड हियर, इट इज इंक्लूडेड, बट द रेशियो ऑफ योर इंटरेस्ट ओवर देयर
will not be that much. That account information, you will only be working for calculations. But while you are learning the financial market, you are going to learn lot of tools, right, which is related to the share market, stock market, प्रॉफिट लॉस रेशियोज, ये कहाँ से निकलते हैं, इसके कितने सॉफ्टवेयर हैं, आप ये सब सीखोगे और वो सब अपडेटेड रहोगे. तो अगेन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट पॉलिसीज, कितनी कंपनीज की कितनी ये है, एजेंट्स हैं, एजेंसीज कैसे काम करती है, वेंडर्स कैसे काम करते हैं, स्टेक होल्डर्स कैसे काम करते हैं, ये दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स. व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम, राइट. याशी Yeah. और कुछ तो मैम से हम प्राइवेट सेशंस अलग से कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस है जो जानना चाहते हैं, बहुत कुछ मैम के पास कंटेंट है बताने के लिए. आई होप अभी तक का क्वेश्चन आपका आंसर हो गया हो, है ना. सो यू बी कनेक्टेड विद अस, वी आर डूइंग मोर सेशंस लाइक दिस फॉर स्टूडेंट्स. यू कैन ऑल्सो हेल्प योर फ्रेंड्स जो ऐसे करियर में कंफ्यूज्ड हैं, एंड जैसे आदित्य है उसको एक गाइडलाइंस मिल रहा होगा. तो लेट अस कंटिन्यू विद द स्लाइड. यू बी देयर विद अस. दोबारा इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, इन द एंड वी विल समराइज विद योर क्वेश्चंस, लाइक आदित्य का कुछ हो या आपका कुछ हो. So we will quickly run through the slide जो मैम ने बनाया है. So आप अभी वीडियो ऑफ करके मैम का स्लाइड का मजे लो. So ड्रीना जी, मतलब यहाँ पर जो इंटैक्ट बने हुए हैं हम लोग, just because the content and the subject knowledge which you are giving is excellent. थैंक यू. मेरे हिसाब से इस सेशन के बाद जब जो नेक्स्ट सेशन हम करने वाले हैं आपके जो डायरेक्टर है आदित्य कॉलेज के, उनके साथ में, तो वो भी शायद बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, जो पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि बच्चों का एक्चुअल क्या फ्लो रहना चाहिए. तो आप प्लीज कंटिन्यू करिए, हम आपकी स्लाइड देखना चाहेंगे जो आपने प्रिपेयर किया है. So right, so जैसे आपने, she just asked if she is getting into finance management. So while you are getting into finance market is different and finance management is different. Again, Ashish, just if you want to note, right? So market study is completely different, और management is like एक finance organization है, उसके अंदर क्या management skills लगेंगे और कैसे लोगों को manage करना है, more about people management and managing the organization finance, right? So this is all that I had to share ideally. Then I had put some points about what we are going to ideally get in brief for the next session. So ideally in the next session, what I have are few points. So people around who are attending today's session, if you feel you want something more to be added in, they can, I guess, always connect through Megha ma'am or people of the organizers who have organized this event. Be connected to us. We will be so insight about everything which will happen in the next sessions. By Monday you will have the details. So हमारे साथ बने रहिए, हमारे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, वो सारी चीजें मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ. आई एम श्योर जिसको अच्छा लगता है वो जरूर लोगों को शेयर करता है, and that's how it, you know, it multiplies. So these are some insights that we will be giving on, and why we have taken this topic for the next session is also because we majorly come from the background and from the industry where we've been meeting so many parents and children who are confused after graduation. अब तो ग्रेजुएट हो गए, क्या था रिक्वायरमेंट कि हमें ग्रेजुएट होना था. तो दिस इज अ ट्रेडिशनल, जैसे मैंने आपको अप्रोच किया पूरे सेशन में, इट हैज बीन अ ट्रेडिशनल पैटर्न, एंड बिकॉज इट हैज बीन अ ट्रेडिशनल पैटर्न, आज तक हमारे पास जैसे अ बिग जंक ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो जाते हैं और उनके बाद उसको पता ही नहीं कि मैंने करियर क्या करना है. तो अल्टीमेटली आपका 12th किस में हुआ है, 10th किस में हुआ है, साइंस में हुआ, आर्ट्स में हुआ है, कॉमर्स में हुआ, और आप ग्रेजुएट कैसे हुए, ये कुछ भी डिपेंड नहीं करता है until and unless you know what you want to become. So the word professional that we are going to address to you is what should help you all more brightly. So I would rather want not Megha, I would suggest if you can have, you know, 10th 12th and graduating students, first second year third year, सब बच्चे अगर ज्वाइन करते हैं आपका अगला सेशन, तो शायद सभी बच्चों का एक इंसाइट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम 12th में ही बच्चे को गाइड करें या हम 10th में ही बच्चे को गाइड करें. जो बच्चा आज कॉलेज डिसाइड कर चुका है मुझे कॉमर्स में ही जाना है और उसने
फर्स्ट ईयर कॉलेज में है, वो उसने 12th के बाद वाला कॉमर्स स्टार्ट कर दिया है, तब भी वो बच्चे के पास चांस होता है कि जो करियर फील्ड है वो उस फील्ड को रेगुलर एजुकेशन करते हुए भी अपना करियर सिलेक्ट करे और उसके साथ चले। तो मोर इम्पोर्टेंट इज दैट यू आर वेरी क्लियर कि आपको किस करियर में जाना है, और वहां से आप पढ़ाई अगर शुरू करते हो तो 100% आप वहां पे पहुंचोगे, एंड नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। एंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज that our mind, all our human minds are created so beautifully with two skills, the creative side of it and the analytical side of it, right, which I'm sure most of you all agree that everybody knows about it. So अगर हम दोनों ही साइड को इक्वल टाइम देते हुए चले तो 100% we all can become billionaires. True. Balance out. Yes, you have to balance out. So the B in life is very important. A तो हम है ही, B को फिगर आउट करो तो बाकी के अल्फाबेट्स अपने आप लाइफ में सेट हो जाएंगे, right? And I feel that was all from me, and I hope happy Ganesh Utsav to everyone here and on behalf of Aditya groups also, right? That was me, Rina D'Souza. Thank you. So I hope my session was helpful to most of you who was attending daily. 100%. रीना जी, it has, I think, मैं अब थोड़ा सा रिव्यू आदित्य की मम्मी या आशीष, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए, बिकॉज ऑडियंस से अभी मेरे को कोई क्वेश्चंस एज सच नहीं आया, बिकॉज दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टॉकिंग, बट इसके बाद मेरे पास अलग से पर्सनली क्वेश्चंस आने चालू हो गए. So Adit, if you have any questions now to ask, please join us, and then Ashish से पूछ के we can sum up. Adit or Seema ji, would you like to ask some questions to ma'am? Ashish, you have anything to ask? I think they have got lot of insight, and Rina, now you tell me, ये जो हम लोग फेस करते हैं रेगुलरली कि पेरेंट्स का, सो मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very important. सो अगर पेरेंट्स समझ जाए तो बच्चे ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएंगे. देखिए आइडियली ऐसा है कि पेरेंट्स हैव टू ओनली इनिशिएट, दे ओनली हैव टू इनिशिएट एंड सपोर्ट द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड. कि हम हमारे यहाँ पे चैलेंज क्या हो जाता है कि कोई बच्चे ने कुछ बोल दिया ना, नहीं 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 ऐसा मत करो, तो हम सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट आई ऑल्सो बीइंग अ मदर एट टाइम्स आई ऑब्जर्व कि मुझे पता है वो सही बोल रहा है लेकिन फिर भी हम मना कर देते हैं कि क्योंकि हमें भी आदत होगी, हमको आदत है कि ये क्या बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड से रिप्लाई आता है कि आपको किसी ने सवाल पूछा, पहला शब्द अगर आपने नहीं बोला है तो आप समझ लीजिए कि आगे आप जो भी बोलोगे बंदे ने सुना नहीं. So anything that starts with a no or anything that starts with a na will always go unheard. True. Right? एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल एग्जांपल है which 100% you are well aware about कि अगर हमने बच्चे को बोला देखो ग्लास लेके जा रहे हो गिराना नहीं, वो गिरेगा ही. क्योंकि उसने कुछ नहीं सुना, उसने ना ही सुना, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है पहले ही ना से स्टेटमेंट शुरू करने की, तो उसने सारा स्टेटमेंट छोड़ दिया और उसने सिर्फ ना सुना, तो वो गिर ही जाता है. So that's been a psychological thing which is medically proved also, और ये सभी के साथ होता है. तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बच्चा कहता है कि हमें ये करना है तो वी मे प्रोबेबली यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू नो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड मेक द चाइल्ड सिट विद अस. कि जैसे आपके पास बहुत सारे आपने एग्जाम विपल दे दिए टेस्ट के, जो आदित्य की मम्मी ने भी करवाए हैं, तो until and unless we take that experience, right, until and unless we sit with them and we understand कि okay जो ये कह रहा है जो और जो उसके एनालिसिस बता रहे हैं वो सारे मैप हो रहे हैं, right? So if we can do a small test, and ideally I would recommend parents do not, देखो 10th में बच्चे को ऑलरेडी हम प्रेशर करके रखते हैं, अभी anyways our education system is changing, so there are lot of information getting roll out. उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे कि हम बच्चे को समझने की कोशिश करें. आइडियली कैसे हो जाता है, हमने बच्चों को 10th स्टैंडर्ड तक तो प्रोटेक्टेड रखा है, वो पढ़ाई कर रहा है, दूध उसको आ जाता है, फिर कुछ डेट्स आ जाते हैं या फिर और आ जाता है, उसको बहुत सारी पैम्परिंग हो जाती है. अचानक से ही इज गोइंग टू गो टू अ कॉलेज वर्ल्ड एंड देन ही इज गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट. सो व्हाट वी फील इज दैट ही इज गेटिंग स्पॉइल्ड और ही इज गेटिंग चेंज. नो, ये तो साइकोलॉजिकल है ना कि बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कुछ नया तो करेगा ही,
हमें सिर्फ उसको अगेन वहाँ पे गाइड करना है कि भैया तुम जो नया कर रहे हो उसको करो, लेकिन उसमें ये चीजें आपको किस तरीके से हानि पहुंचा सकती है, वो अगर हम सीख ले, दिस इज अगेन अ कला और अ स्किल, अगर हमने एज अ पेरेंट वो सीख लिया, तो कुछ भी करे बच्चा बाहर जाके, वो एक बार आपको आके बताएगा कि उसने गलत किया कि सही किया, एंड यू विल ऑलवेज बी द मेंटर देयर। तो जहाँ पे हम वो वाला स्टैंड बना लिए, इट्स गोइंग टू हेल्प एवरी पेरेंट। सो द स्किल ऑफ पेरेंटिंग इज नथिंग बट don't try to become the best friend of your child because he will not appreciate. He wants somebody of his age group to be a best friend जिसके सामने he can freely speak whatever he wants to or she wants to. But yes, you can definitely be a shoulder to your child where the child does not have a hurdle of seeing that if I go and cry to a lady I will only get it back. So ये वाला जो डर होता है ना, एटलीस्ट दो पेरेंट में से एक जन के पास ये वाला तो स्कोप होना चाहिए, that one be is a shoulder and one be has the cane in hand, so it goes, you know, hand in hand. So it's never, parenting is never a game of one person, it has to be two people if there are two together. If it is one person, so the multiple roles can be played and we can always take help of family members, they are always there for our support. वेरी ट्रू, सो वेल सेड रीना। मतलब सुन के भी ऐसा लग रहा है कि आई होप जितने लोग यहाँ देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग, इट इज प्रैक्टिकल। जो बोगे वो पाओगे, है ना। सो हमको क्या चाहिए, हमको अगर एप्पल खाना है तो हमें एप्पल का बीज डालना है, ऑरेंज का बीज डाल से हमें नहीं मिलेगा। तो यू शुड हैव अ राइट ट्रैक, राइट पाथ, राइट इन्फ्लुएंसर्स अराउंड यू। तो कभी कभी बच्चा इन्फ्लुएंस गलत हो जाता है तो करियर भी गलत चूज हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना है, ये सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा, कहिए सुनिएगा और सुनिए कहिएगा। बट मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े वो इनसे कुछ सीखे, और जितने बच्चे सुन रहे हैं वो कुछ एक नेक्स्ट स्टेप ले सके ये सेशन के बाद। जो बोलते हैं ना जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, या योर राइट गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट, योर राइट कंपनी इज इम्पोर्टेंट। सो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, और नेक्स्ट सेशन में वी विल बी हैविंग मोर इन डेप्थ डिटेल्स। सो नेक्स्ट सैटरडे प्लीज बी कनेक्टेड, हमारी सारी डिटेल्स हमारे पेज पे रहेंगे, आप प्लीज हमें फॉलो करिए तो यू विल गेट देन अपडेट। मैम कुछ और हमारे शो के बारे में आप बोलना चाहेंगे? You guys are doing a wonderful job, right? This is a very good initiative actually, to be very true. And मैंने वही कहा ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज ब्रॉट अस हियर, अदरवाइज हम भी क्या अलग अलग क्लासेस में जाके थोड़े थोड़े 5-5 10 बच्चों को बताते हैं, ये अब हम डिजिटली है एंड मे बी द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड कैन सी अस, so it's not limited to only Mumbai या फिर only Borivali or only that location where we are, it is going to be extended to all over people in India. So this is in general information जो कि किसी को भी कॉमनली हेल्प हो सकता था, और अगर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, या वी स्टिल हैव मेनी पेरेंट्स हु might have just done art and they don't know the world outside around it, so probably this presentation I created so that it can help them help their children take a decision, right? डेफिनेटली जितने लोग देख रहे हैं उस बात पे एग्री करेंगे। सो लेट्स एंड विद अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे। एंड as it's a very important day today, Ganesh Chaturthi, so again I would like to wish everybody a happy Ganesh Chaturthi, and let's pray and do good to all and do good to yourself. Thank you.